میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین ذوالفقار اور میں ہوں ثنا کریم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلٹن کے آغاز میں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سمیت ملک بھر میں بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف احتجاج شروع کر دیا گیا ہے۔ مختلف شہروں میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے قائدین اور کارکنان احتجاجی مظاہروں میں شریک ہیں۔ کراچی کے ایمپریس مارکیٹ کے قریب اپوزیشن کا مظاہرہ جاری ہے۔ مظاہرین کی جانب سے مہنگائی اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے خلاف دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں۔ کراچی ضلع ملیر میں جالوں کا احتجاج جاری ہے۔ مہنگائی کے خلاف جہاں ملک بھر میں پی ڈی ایم کی جانب سے جو احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، تو وہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کراچی کے ضلع ملیر میں جالوں کا احتجاج اس وقت جاری ہے۔ کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنے نمائندے حفیظ بلوچ سے۔ حفیظ بلوچ، بتائے گا اس احتجاج میں شریک شرکا کا کیا کہنا ہے مہنگائی کے حوالے سے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے تحت مہنگائی کے خلاف ساؤتھ چوکی پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس احتجاجی مظاہرے میں وزیر سندھ سید قادری شاہ، صوبائی کابینہ کے اراکین سمیت جو کارکنان ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ وزیر سندھ مراد علی شاہ نے کارکنان سے خطاب میں کہا کہ وہ وقت قریب عام ہو چکا ہے کہ جب وزیر اعظم کو عوام اپنی طاقت کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالیں گے۔ اس احتجاج کے باعث اطراف کی جو اہم شاہراہیں ان کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا، کیونکہ شام کے اوقات میں ٹریفک کا بہاؤ شہر کے مختلف علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے اور دفاتر کی چھٹیوں کا بھی وقت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساؤتھ سرنگی ایک انڈسٹریل ایریا ہے۔ تو شام کے اوقات میں جب انڈسٹریل زون سے مزدور اپنے گھروں کو نکلے تو ان کو شدید پریشانی کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ مختلف اہم شاہراہوں کو ٹریفک بند کرنے کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں مہنگائی کے خلاف اس وقت عوام سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ حفیظ بلوچ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مہنگائی کے خلاف مظاہرہ۔ احتجاج میں نون لیگ، جے یو آئی سمیت پی ڈی ایم شامل جماعتوں کے کارکنان اور قیادت شریک ہے۔ ایمپریس مارکیٹ میں اس وقت مظاہرے جاری ہیں۔ بالکل، ایمپریس مارکیٹ میں اس وقت مظاہرے جاری ہیں۔ احتجاجی مظاہرے کے کچھ مناظر جو کہ اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ مناظر ہیں۔ اس وقت عوام کی بڑی تعداد ہے جو کہ اس وقت اپوزیشن کے ہمراہ مہنگائی کے خلاف اپنی آواز اٹھانے سڑکوں پر آئی ہے۔ کراچی میں ایمپریس مارکیٹ پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ، جے یو آئی سمیت پی ڈی ایم میں شامل تمام تر وہ جماعتیں ہیں جو کہ اس احتجاج میں شریک ہیں۔ بالکل، ایمپریس مارکیٹ کے یہ مناظر ہیں، جبکہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے جے یو آئی ایف اے کے رہنما عبدالغفور حیدری نے بھی احتجاج میں شریک شرکا سے خطاب کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ مہنگائی ختم نہیں ہو جاتی ہے ہم لوگ سراپا احتجاج رہیں گے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے طلعت حسین سے۔ طلعت حسین، بتائے گا اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، شرکا کیا مطالبات کر رہے ہیں حکومت سے؟ آج بالکل ایمپریس مارکیٹ پر پی ڈی ایم کے تحت ہونے والا جلسہ اب اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ جو یہاں مرکزی قائدین جن میں اویس نورانی، اسی طرح مولانا عبدالغفور حیدری ہے، انہوں نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ آج وہ حکمران ہیں جو آٹا چور ہیں، چینی چور ہیں، دوائی چور ہیں، گندم چور ہیں، وہ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور یہ سلیکٹڈ ہے۔ جب تک یہ سلیکٹڈ کو ہم روانہ نہیں کرنے کے اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا آج لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ یہی ہے عمران خان جو کل یہ کہتا تھا کہ 10 لوگ میرے خلاف احتجاج کریں گے تو میں گھر چلا جاؤں گا، آج وہ آ کر دیکھیں 10-10 ہزار ایک ایک جگہ پر لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ چین کی بانسری بجا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہیں وہ مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ ایک وقت کی روٹی جو ہے اس پر وہ اتنے تنگ ہیں جو ایک وقت کی روٹی کی وجہ سے پورا نہیں کر سکتے۔ حکومت نے جو ان کی معاشی پالیسیاں ہیں وہ عوام دشمن پالیسیاں ہیں، تو ہم اس حکومت کو گھر بیچ کر ہی دم لیں گے۔ جی، مہنگائی، بے روزگاری کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ طلعت حسین، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔
महंगाई, बेरोजगारी, हजारों मुलाजमीन की बरतरफी, पेट्रोलियम की कीमतों में बेपनाह इजाफे के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर निकल आई है। मोहम्मद एजेंसी में भी पीपल्स पार्टी कारकुनान ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। और शहबाज शरीफ की मुजाहिरों को भरपूर बनाने के लिए सूबाई अहदेदारों को हिदायत। नून लीगी सदर ने कहा कि आवाम मुजाहिरों में शिरकत करके हुकूमत पर अदम एतमाद करें। जालिम हुकूमत से निजात के बगैर मुल्क की हालत नहीं सुधरेगी। हुकूमत को मजीद वक्त देने का मतलब मजीद तबाही है। हुकूमत ने मुल्क को तबाही के रास्ते पर डाल दिया। ये लोगों को घर क्या देंगे, एक वक्त की रोटी भी छीन ली गई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी का लाहौर में एहतजाजी रैली से खिताब। कहा, इमरान खान कहते थे जब महंगाई हो तो वजीर आजम चोर होता है। नौकरियां तुमने क्या देनी थी, घर तुमने क्या देने थे, एक वक्त की रोटी छीन ली तुमने लोगों को बेरोजगार किया, बेघर किया। आज वजीर आजम के इख्तियारात याद आते हैं। जब कहते थे कि महंगाई हो तो वजीर आजम चोर हो, तो जो तुम्हारे दौर में महंगाई हुई तो फिर सबसे बड़ा चोर कौन है? हुकूमत ने मुखालिफिन पर इल्जाम तराशी के अलावा कुछ नहीं किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक का लाहौर में एहतजाजी रैली से खिताब। उनका मजीद कहना था कि आटा, चीनी और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मगर वजीर आजम अपने वुज़रा और साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान न्याजी ने सिवाय झूठे इल्जामात कभी नवाज शरीफ साहब से, कभी मरियम नवाज साहिबा से, कभी शहबाज शरीफ साहब से निकला क्या? झूठ का बुलंदा निकला। नया पेंडोरा पेपर्स है, उसका भी जवाब देना है। इस वक्त लाहौर में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कार्ड के ऊपर जो प्रोग्रेस है उसका भी वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो जायज़ा लिया और दिसंबर के आखिर में पंजाब से जो है वो हेल्थ कार्ड अभी साहिवाल डिवीज़न और डीजी खान डिवीज़न की सारी आबादियों को पहले ही मिल चुका हुआ है और उसका आगाज़ जो है वो लाहौर से जो है वो दिसंबर के आखिर में जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि पंजाब की सारे ख़ानदानों को हेल्थ कवर जो है वो देने जा रहे हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने उस्मान बुज़दार साहब ने 60 अरब रुपया उन्होंने अपने सूबाई बजट के अंदर जो है वो रखा हुआ है। उस हवाले से तमाम जो मैकेनिज़्म है, जो इंतज़ामात हैं, उसके ऊपर उनका काम हो रहा है। अब ये नहीं होगा कि किसी का कोई प्यारा, किसी का वालिद, किसी का कोई बाप, किसी की बहन, किसी का कोई बेटा, किसी की कोई वालदा इलाज ना होने की सूरत में या पैसे ना होने की सूरत से इलाज ना करवा सकें। उसके लिए मैं समझता हूँ कि रियासत खुद आगे आ रही है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सारी आबादी को हेल्थ कार्ड मिल चुका है, जिसका मैं समझता हूँ कि तारीफ़ अब दुनिया के आलमी जरीदे भी कर रहे हैं। कल भी एक बरतानवी अखबार जो टेलीग्राफ है, उसने जो पाकिस्तान का जो हेल्थ कार्ड प्रोग्राम है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी को मिला है, उसकी उन्होंने जो है वो तारीफ़ की है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से लाहौर में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि हमारा चैलेंज अपोजिशन नहीं, गुड गवर्नेंस है। पूरी कोशिश महंगाई के खात्मे पर है। सेहत कार्ड के इजरा से मुस्तहक अफराद को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन के एहतजाज को खुदनुमाई और इंतशार की सियासत करार दे दिया। कहा, अपोजिशन महंगाई की आड़ में मनफी सियासत कर रही है, उसे सिर्फ इक़्तिदार की तड़प है। नाअहल हुकूमत ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। 3 साल के दौरान मुल्क में महंगाई का तूफान आ चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में पीपल्स पार्टी की रैली से खिताब। कहा, नाअहल हुकूमत को आईना दिखाने के लिए रैली में शरीक हुआ हूँ। मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम का जीना दोभर हो चुका है। ये लोग जब तक रहेंगे ऐसे ही जुल्म ढाते रहेंगे। नाअहल हुकूमत उसके आईना दिखाने के लिए जमा हो रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, इस रैली में और इस प्रोटेस्ट में मैं खुद शरीक हूंगा। इस नाअहल
सिलेक्टेड हुकूमत ने जो अवाम का हाल किया है, हालत ये है कि अवाम का जीना दोभर हो गया है। महंगाई का जो तूफान पिछले 3 साल में आया है, तब तक ये रहेंगे, लोगों को कोई भी सुकून नहीं मिलेगा। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। और अपोजिशन अरकान का चीफ जस्टिस बलूचिस्तान को खत लापता 4 मेंबरान की बाजियाबी का मामला उठा दिया। गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और IG को भी खत इरसाल। लिखा, लापता अरकान को वजीर आला बलूचिस्तान ने हब्से बेजाम में रखा है। गायब होने वाले अरकान की बाजियाबी के लिए इकदाम किए जाएं। खत पर 8 अरकान असम्बली के दस्तखत भी मौजूद हैं। और PP रहनुमा खुर्शीद शाह की रिहाई एक दिन के लिए रोक दी गई है। ज़राए के मुताबिक खुर्शीद शाह की रिहाई जमानती ऑर्डर की तस्दीक के बायस रोकी गई है। जमानत के ऑर्डर की तस्दीक होने से पहले मुतालिका दफातर बंद हो गए थे। खुर्शीद शाह अब कल जेल से रिहा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। वज़ीर आला ने बल्दियाती इदारों को फ़ाल करने, महंगाई और अवामी फलाही मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने आइंदा बल्दियाती निज़ाम के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। मुलाकात में वज़ीर आला ने सूबे में अवामी रिलीफ, सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों और महंगाई की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात बारे आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से भी मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को बताया कि इंशाअल्लाह GS+ स्टेटस में तौसीक का फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने GSP+ स्टेटस में तौसीक के लिए गवर्नर पंजाब के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म 23 से 25 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। आपको बताएं, तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म एंस्टर मशरक वस्ता का कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा समेत आला सतह वफ्द वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आज़म आला सऊदी क़यादत और ताजर बरादरी से भी अहम मुलाकातें करेंगे। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ बढ़ाते हैं। कराची से पेशावर जाने वाली मुसाफिर को शिकारपुर बाईपास के करीब हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आगा तारिक पठान से। आगा तारिक, बताइएगा जख्मियों की हालत अब कैसी बताई जा रही है? कराची से पेशावर जाने वाले मुसाफिर को शिकारपुर बाईपास के करीब हादसे का शिकार हुए हैं। 15 मुसाफिर जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमारे नुमाइंदे आगा तारिक पठान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मजीद उनसे डिटेल्स लेंगे। आगा तारिक, बताइएगा अस्पताल इंतजामिया का क्या बताना है, जख्मियों की कैसी हालत है अब? ये आपको बताना चलूं क्या अभी जो है आज अभी मगरिब के टाइम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पेशावर से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच जो है वो टायर बस्ट होने की वजह से जामड़ा स्टाफ सक्कर बाईपास के करीब जो है पलटी हो गई है और उसमें जो है 21 अफराद इसमें मासूम बच्चे, खवातीन और जो है मर्द थे और फिजन वो शदीद जख्मी हो गए, जिनको शिकारपुर की अस्पतालों में लाया गया है। इस टाइम शिकारपुर जिले के अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है। शिकारपुर के डिप्टी कमिश्नर, DHO, MS और तमाम स्टाफ जो है उस जगह पे पहुंचकर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि उनको शिकारपुर से सक्खर के लिए रवाना की जा रहा है, जिनकी हालत तफ्तीशनाक है। जिससे हम के अस्पताल में इमरजेंसी जाए वो पहुंचकर शहरियों ने, पुलिस ने, ईदी रजाकार और एम्बुलेंस जो रजाकार थे उन्होंने पहुंचकर जख्मियों को। हादसे में 15 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उनको वहां पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तफसीलात बता रहे थे आगा तारिक पठान, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने बिजली के तरसीली निज़ाम में 111 अरब रुपए की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। कहा कि सरमायाकारी 3 साल में NTDC के जरिए की जाएगी, जिसके जरिए कौमी ग्रिड से बिजली की तरसीली सलाहियत में इजाफा होगा। तरसीली सलाहियत 2023 में 28,750 मेगावाट हो जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने पंजाब भर के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी है। कहा है कि मार्च तक पूरे सूबे में
सेहत कार्ड मिल जाएंगे। सेहत, तालीम और 4 बुनियादी अशिया ज़रूरिया आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब का हर खानदान 10 लाख रुपए तक हर साल सेहत कार्ड के जरिए हासिल कर सकेगा। ट्वीट में कहा, इस गेम चेंजर प्रोग्राम के जरिए अब मेयारी इलाज गरीब तरीन से मुतवस्सित तबके तक हर फर्द को मुयस्सर होगा। आगाज दिसंबर में होगा और मार्च तक पूरे पंजाब को सेहत कार्ड मिल जाएंगे। सेहत कार्ड आप अपनी मर्जी के किसी भी डॉक्टर या अस्पताल में इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकारी ही नहीं, प्राइवेट डॉक्टर्स और अस्पताल भी अब आपके इलाज के लिए बिला मुआवजा मुयस्सर होंगे। सेहत, तालीम और 4 बुनियादी अशिया जरूरिया आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। फेक न्यूज पर कानून बनाकर काबीना के हवाले कर दिया है। 2018 से कह रहा हूँ, बुनियादी सियासी इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। मीडिया और अदालती इस्लाहात लाजमी हैं। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 14 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की कीमत 174 रुपए 10 पैसे हो गई है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 14 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर की कीमत 174 रुपए 10 पैसे हो गई है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान ने माहिरीन मईशत को भी परेशान कर रख दिया है। माहिर मईशत ताहिर नकवी कहते हैं कि हुकूमत डॉलर रेट्स को फिक्स करे। गवर्नर स्टेट बैंक का बयान हैरानकुन है। फौरी इक़दाम ना किए गए तो मजीद महंगाई हो सकती है। पाकिस्तान में महंगाई का जोर कम न हो सका। डॉलर की कीमत 174 रुपए से तजावुज कर गई। हर चीज की कीमतों को आग लग गई। महंगाई ने मईशत पर नजर रखने वालों को भी परेशान कर दिया। मुआशी उमूर के माहिर ताहिर नकवी कहते हैं, 152 रुपए से डॉलर 174 रुपए पर आ गया, जिससे पाकिस्तान के कर्जे मजीद बढ़ेंगे। जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है वो तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होती हैं। जो बैंकिंग सेक्टर के मुख्तलिफ लोग हैं उनका ओपिनियन ये है कि हम 180 विटनेस करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो इवन 200 रुपए की बातें भी करते हैं, लेकिन वो स्पेकुलेटर्स हैं, उनकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं फिर रिस्टेट करूँगा कि स्टेट बैंक को इंटरवेंशन करनी चाहिए, थोड़ा सा इसको स्टेबलाइज करेगा तो बिजनेस करने वालों का कोई माइंडसेट बनेगा कि गोइंग फॉरवर्ड उन्हें क्या करना है। ताहिर नकवी का कहना था, गवर्नर स्टेट बैंक का डॉलर से मुताल्लिक बयान हैरान कुन है। डॉलर का रेट फिक्स किया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक का स्टेटमेंट की बात करूं या गवर्नमेंट के स्पोक्समैन जो आके डॉलर के बढ़ने के या रुपी डेप्रिसिएशन के फवाइद बताते हैं, उनसे मुझे शदीद एतराज़ है कि सोच समझ के बात किया करें। पाकिस्तान में डॉलर की ऊंचाई रही तो आम आदमी मजीद महंगाई की चक्की में पिसेगा। महंगाई से परेशान आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स में भी रिलीफ ना मिल सका। तेल, घी, आटा, चावल, दालें, सब की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। रिटेल मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीजें महंगी। आवाम परेशान, कहते हैं महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आइए आपको दिखाते हैं। आम मार्केट्स की तरह यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की लपेट में। घी, तेल, चावल, चीनी की कीमत में भी इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी 85 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। तेल और घी की कीमत में भी 20 से 30 रुपए का इजाफा हो गया। महंगाई की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स में भी खरीदार न होने के बराबर है। अवाम ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। यहाँ पे भी पूरा सामान नहीं मिल पाता है। चार चक्कर लगाते हैं तो जाके सामान को कंप्लीट कर पाते हैं। गरीब आदमी यहाँ की चक्कर लगाएगा या अपना कारोबार देखेगा। डिस्टर्ब तो जब होगा जब बना पाएंगे। बजट तो बन ही नहीं रहा। बजट बनेगा कैसे? रोज नई कीमतें। यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम के मुताबिक यहाँ मार्केट के मुकाबले में कुछ चीजें सस्ती हैं, लेकिन ब्रांडेड चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। नहीं, लोगों का रुझान है, लेकिन हर चीज सस्ती है, बीमार है। ब्रांडेड आए, अभी ब्रांडेड घी, तेल है, उनके रेट अप हुए हैं, थोड़े से रेट ज़्यादा 15 रुपये लीटर। यूटिलिटी स्टोर्स में खाने पीने की अशिया तो मौजूद है, लेकिन उनके मायार पर सवालिया निशान है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खाने की हर चीज महंगी। अवाम परेशान, कहते हैं तब्दीली सरकार कुछ तो सस्ता करे। कैमरामैन नवीद आफ्ताब के साथ यासिर सलीम, न्यूज़ 1 कराची।
फासले मिट गए। खाने काबा में 1.5 बरस बाद पहली बार नमाज जुमा मुकम्मल गुंजाइश के साथ अदा की गई। मस्जिदुल हराम के 50 दरवाजे खोल दिए गए हैं। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी सहनों और से मुल्हिक राहदारियों की हिमावक्त सैनिटाइजिंग की जा रही है। मस्जिद नबवी में भी समाजी फासले के बगैर ही नमाज अदा की गई। आपको बता रहे हैं कि फासले मिट गए। खाने काबा में 1.5 बरस बाद पहली बार नमाज जुमा मुकम्मल गुंजाइश के साथ अदा की गई है। मस्जिदुल हराम के 50 दरवाजे खोल दिए गए हैं। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी सहनों और से मुल्हिक राहदारियों की हिमावक्त सैनिटाइजिंग की जा रही है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा मकबूजा कश्मीर वादी के मकीनों के लिए मुसीबत बन गया। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के साथ साथ इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह हफ्ते को मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। कई रोज से जारी सिक्योरिटी इंतजामात मकबूजा वादी के मकीनों के लिए मुसीबत बन गए। बुज़दिल भारतीय फौज। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आरा की लाइनअप मुकम्मल। क्वालिफाइंग राउंड में नमीबिया ने आयरलैंड को 8 विकेट से शिकस्त देकर अगले मरहले में अपनी सीट पक्की कर ली। शारजा में खेले गए मैच में आयरलैंड ने नमीबिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 125 रन बना लिए। जॉन फ्लाइलेंट ने 3 जबकि डेविड वेसे ने 2 विकेट हासिल की। नमीबिया ने मतलूबा हदफ 9 गेंद कबल 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कौमी टीम से वर्चुअल खिताब में भारतीय टीम को ज़ेर करने के गुर बता दिए हैं। रमीज राजा ने खिलाड़ियों को हिदायत दी कि बेखौफ होकर जारहाना क्रिकेट खेलें, बिला खौफ व खतर मैदान में उतरें, टीवी सोशल मीडिया पर तबसरों पर तवज्जो न दें। शोबिस नगरी से खबर है कि बच्चा जो शाहजाम कहने से हट्टा कट्टा आदमी बन जाता है धूम मचाने के लिए तैयार है। हॉलीवुड मूवी शाहजाम 2 का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया। Shazam! Fury of the Gods takes the excitement and the action. This fun all around. You're in store for a treat, y'all. न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए।